الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا یہ سبق ہے المیزان الصرفی، یعنی کسی بھی کلمہ کا وزن کیسے آتا ہے، کسی بھی کلمہ کا میزان لانے کا، وزن لانے کا طریقہ کیا ہے، وہ یہاں پر اس سبق میں ذکر کیا جائے گا، بیان کیا جائے گا۔ تو یہاں پر نیچے آگے بیان کر رہے ہیں نمبر 1 پہ الاول کہہ رہے ہیں کہ لما کان اکثر الکلمات اللغۃ العربیۃ ثلاثیاً، چونکہ عربی زبان کے زیادہ تر کلمات ثلاثیاً 3 حرفی ہوتے ہیں، زیادہ تر عربی کلمات میں 3 حروف پائے جاتے ہیں، اسی بنا پر اعتبر علماء الصرف ان اصول الکلمات ثلاثۃ احرف، علماء صرف نے، علم صرف کے علماء نے خیال کیا ہے، سمجھا ہے، مانا ہے ان اصول الکلمات ثلاثۃ احرف، کہ کلمات کے اصول، کلمات کے اصلی حروف 3 حروف ہوتے ہیں۔ وقابلوها عند الوزن بالفاء والعین واللام، اور انہوں نے، علماء صرف نے، علم صرف کے علماء نے ان کلمات کو وزن کرتے وقت فا، عین اور لام کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، فا، عین اور لام کو وزن کے طور پر لایا ہے، مصورتاً بصورت الموزون، مزید یہ کہ فا، عین اور لام کو وہی شکل دی گئی ہے جو کہ موزون کی ہے، یعنی جس کلمہ کا وزن لایا جا رہا ہے، جس کلمہ کا میزان صرفی استعمال کیا جا رہا ہے، اس کلمہ کی جو شکل ہے، صورت ہے، وہی صورت میزان صرفی کو بھی دی جاتی ہے، وزن کو بھی دی جاتی ہے۔ فیقولون فی وزن قمر مثلاً، تو مثال کے طور سے ایک کلمہ ہے قمر، اس کلمہ کا میزان کیسے لایا جاتا ہے، کہہ رہے ہیں فیقولون فی وزن قمر مثلاً، مثال کے طور سے قمر کے لفظ کا وزن لاتے سمے علماء صرف کہتے ہیں فعل، تو اس مثال میں قمر جو کہ موزون ہے، اس کلمہ کا وزن لاتے سمے قاف کے مقابلے میں فا لایا گیا ہے، میم کے مقابلے میں عین لایا گیا ہے، اور را کے مقابلے میں لام لایا گیا ہے۔ اسی طرح سے قاف پر چونکہ زبر ہے، فتحہ ہے، اسی لیے فا کو فتحہ دیا گیا ہے، میم پر بھی فتحہ ہے، اسی لیے عین کلمہ کو بھی فتحہ دیا گیا ہے، اور اس طرح سے جو شکل موزون کی ہے، قمر کی ہے، وہی شکل میزان صرفی کو بھی، وزن کو بھی، یعنی فعل کو بھی دی گئی ہے۔ دونوں کو ایک ہی طرح سے پڑھا جاتا ہے، قمر فعل بالتحریک، حرکتوں کے ساتھ، یعنی فا کلمہ اور عین کلمہ دونوں کو حرکت دی گئی ہے، اور وہی حرکت دی گئی ہے جو کہ موزون کی ہے، جس کلمہ کا وزن لایا گیا ہے، اس کلمہ کی جو شکل ہے، حرکت ہے، وہی حرکت میزان میں بھی لائی گئی ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں وفی حمل، اور کلمہ حمل کا میزان صرفی وزن کیا ہے، بیان کیا گیا ہے فعل بکسر الفاء و سکون العین، فا کلمہ کے کسرہ کے ساتھ اور عین کلمہ کے سکون کے ساتھ، چونکہ حمل میں بھی یعنی میزان صرفی میں بھی یہی شکل ہے، اسی بنا پر میزان صرفی کو بھی، وزن کو بھی یہی شکل دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے وفی کروما فعولا بفتح الفاء و ضم العین، فا کلمہ کے فتحہ کے ساتھ اور عین کے ضمہ کے ساتھ، وحلم جرن، اور اسی طرح سے دیگر کلمات میں بھی میزان صرفی لایا جائے گا، وزن لایا جائے گا۔ میزان صرفی لانے کا، وزن لانے کا یہی طریقہ ہے جیسا کہ اوپر میں بیان کیا گیا۔ اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں وَيُسَمُّونَ الْحَرْفَ الْأَوَّلَ فَاءَ الْكَلِمَةِ وَالثَّانِيَ عَيْنَ الْكَلِمَةِ وَالثَّالِثَ لَامَ الْكَلِمَةِ، اور صرفی حضرات پہلے حرف کا نام رکھتے ہیں فا کلمہ، والثانیہ عین الکلمۃ، اور دوسرے حرف کا نام رکھتے ہیں عین کلمہ، والثالثہ لام الکلمۃ، اور تیسرے حرف کا نام رکھتے ہیں لام کلمہ۔ پہلے حرف کا فا کلمہ، دوسرے حرف کا عین کلمہ، اور تیسرے حرف کا لام کلمہ نام رکھا جاتا ہے، جو کہ بڑی مشہور چیز ہے، سب کو یہ چیز معلوم ہے۔ آگے ذکر ہو رہا ہے، بیان کر رہے ہیں الثانی نمبر 2
फ़इज़ा ज़ादतिल कलिमतु अला सलासत अहरुफिन, अगर कोई कलेमा ऐसा हो जिसमें 3 ही हरूफ ना हो। ऐसे तो उमूमन यही होता है कि ज़्यादातर कलेमात 3 हरफ़ी होते हैं, लेकिन सारे कलेमात 3 हरफ़ी नहीं होते हैं। बाज़ कलेमात 4 हरफ़ी भी होते हैं, बाज़ कलेमात उससे भी ज़्यादा हरूफ के होते हैं। तो अगर कोई कलेमा ऐसा हो जिसमें हरूफ की तादाद 3 ना हो बल्कि 3 से ज़्यादा हो, तो फिर ऐसी सूरत में उस कलेमा का मीज़ान कैसे लाया जाएगा बयान किया जा रहा है, उसका तरीका ज़िक्र हो रहा है। कह रहे हैं फ़इज़ा ज़ादतिल कलिमतु अला सलासत अहरुफिन, कि जब कलेमा में हरूफ की तादाद 3 से ज़्यादा हो तो ऐसी सूरत में उस कलेमा का मीज़ान सरफ़ी कैसे लाया जाएगा। कह रहे हैं कि फ़इन कानत ज़ियादतुहा नाशिअतन मिन अस्ल वज़इल कलिमति अला अर्बअत अहरुफिन औ खमसतिन ज़िदत फ़िल मीज़ान लामन औ लामैन अला अहरुफ फ़ा ऐन लाम, कि अगर किसी कलेमा में ज़्यादती पैदा हो रही हो, किसी कलेमा में हरूफ की तादाद 3 के बजाय 3 से ज़्यादा हो, मिन अस्ल वज़इल कलिमति अला अर्बअत अहरुफिन औ खमसतिन, इस तौर पर कि उस कलेमा को असल ही में वज़ा किया गया है 4 हरूफ पर या 5 हरूफ पर, उस कलेमा के असली हरूफ ही 4 हो या 5 हों, वो कलेमा रुबाई हो या खुमासी हो, तो ऐसी सूरत में इस तरह के कलेमात का मीज़ान कैसे लाया जाएगा, इस तरह के कलेमात का वज़न किस अंदाज से लाया जाएगा, ज़िक्र हो रहा है, बयान किया जा रहा है। ज़िद्दा फ़िल मीज़ान लामन औ लामैन अला अहरुफ फ़ा ऐन लाम, तो ऐसे कलेमात के मीज़ान लाने का तरीक़ा ये है। ज़िद्दा फ़िल मीज़ान, मीज़ान में आप ज़्यादा करेंगे, लामन औ लामैन, या तो 1 लाम, औ लामैन या 2 लाम, अला अहरुफ फ़ा ऐन लाम, कहाँ पर, फ़ा ऐन और लाम के आखिर में। फ़ा ऐन और लाम जो कि 3 हरफ़ी कलेमा का वज़न है, मीज़ान है, इसी के आखिर में आपको या तो 1 लाम बढ़ाना है या 2 लाम बढ़ाना है। अगर कलेमा रुबाई है, 4 हरफ़ी है, तो ऐसी सूरत में फ़ा ऐन और लाम के आखिर में 1 लाम मज़ीद बढ़ाना पड़ेगा। और अगर कलेमा खुमासी है, 5 हरफ़ी है, तो ऐसी सूरत में फ़ा ऐन और लाम के आखिर में 2 लाम मज़ीद बढ़ाने पड़ेंगे। फ़तक़ूलु फ़ी वज़ने दहरजा मसलन, तो मिसाल के तौर से एक कलेमा है दहरजा जो कि रुबाई है, 4 हरफ़ी है, इसके तमाम हरूफ असली हैं, कोई भी इसमें ज़ाइद हर्फ नहीं है। दाल भी असली है, हा भी असली है, रा भी असली है और जीम भी असली है। तो ऐसी सूरत में इस कलेमा का मीज़ान क्या है, बयान किया जा रहा है। फ़अलला, इस कलेमा का मीज़ान होगा फ़अलला। दहरजा कलेमा का मीज़ान आप कहते हैं फ़अलला। इसी तरह से वफ़ी वज़ने जहमरेशुन फ़अललिलुन, ऐसे ही आप कहते हैं जहमरेशुन फ़अललिलुन। चूँकि जहमरेशुन ऐसा कलेमा है जो कि खुमासी है, 5 हरफ़ी है, तमाम हरूफ इसमें असली हैं, कोई भी ज़ाइद हर्फ नहीं है। इसी बिना पर मीज़ान लाते वक्त फ़ा ऐन और लाम के आखिर में मज़ीद 2 लाम का इजाफ़ा किया गया है, बढ़ाया गया है और इसका मीज़ान लाया गया है फ़अललिलुन। तो यहाँ पर बयान किया गया है कि अगर कोई कलेमा ऐसा हो जिसमें हरूफ की तादाद 3 से ज़्यादा हो, 4 हो या 5 हो और सब के सब असली हो, उसमें कोई भी हर्फ ज़ाइद ना हो, तो ऐसी सूरत में 4 हरफ़ी कलेमा का मीज़ान लाते वक्त मीज़ान के आखिर में 1 लाम और बढ़ाना पड़ेगा। और अगर कलेमा खुमासी है, 5 हरफ़ी है, तो ऐसी सूरत में मीज़ान लाते वक्त मीज़ान के आखिर में 2 लाम मज़ीद बढ़ाने पड़ेंगे। उसके बाद कहा जा रहा है व इन कानत नाशिअतन मिन तकरीर हरफ़िन मिन उसूलिल कलिमति कर्ररत मा युक़ाबिलुहु फ़िल मीज़ान, और अगर किसी कलेमा में ज़्यादती पैदा हो रही हो, किसी कलेमा में हरूफ की तादाद 3 के बजाय 3 से ज़्यादा हों, और वो ज़्यादती कैसी हो, मिन तकरीर हरफ़िन मिन उसूलिल कलिमति, उस कलेमा के जो असली हरूफ हैं उन्हीं हरूफ में से
किसी हर्फ के मुकर्रर आने की वजह से, मुशद्दद होने की वजह से, डबल आने की वजह से उस कलेमा में हरूफ की तादाद 3 ना हो बल्कि 3 से ज़्यादा हो जाए, तो ऐसी सूरत में उस कलेमा का मीज़ान कैसे लाया जाएगा बयान किया जा रहा है। कर्ररता मा युकाबिलहु फिल मीज़ान, तो ऐसी सूरत में उसके मुकाबिल मीज़ान में जो भी हर्फ होगा, चाहे ऐन कलेमा हो या लाम कलेमा हो, उसे भी आपको मुकर्रर लाना है, डबल लाना है। फ़तक़ूलु फ़ी वज़न क़द्दमा मसलन, मिसाल के तौर से एक कलेमा है क़द्दमा बितशदीदिल ऐन, तो मिसाल के तौर से एक कलेमा है क़द्दमा जो कि ऐन कलेमा की तशदीद के साथ है, दाल जो कि असली हर्फ है, ऐन कलेमा है, यह मुकर्रर है, डबल है। इसका मीज़ान क्या होगा बयान किया गया है फ़अला, इसका मीज़ान होगा फ़अला। ऐन कलेमा को मुकर्रर लाया गया है, फ़अला नहीं बल्कि फ़अला लाया गया है। वफ़ी वज़न जलबबा, ऐसे यहाँ पर जलबता लिखा हुआ है लेकिन जलबता नहीं है बल्कि बा डबल है, जलबबा है। तो जलबबा का मीज़ान क्या होगा, फ़अलला होगा, चूँकि बा लाम कलेमा है, मुकर्रर है, इसी बिना पर मीज़ान में भी बा को लाम कलेमा को मुकर्रर लाया गया है, डबल इस्तेमाल किया गया है। जलबबा का मीज़ान फ़अलला लाया गया है। वयुक़ालु लहू मुज़अफ़ुल ऐन अविल लाम, और इसे मुज़अफ़ुल ऐन कहा जाता है या मुज़अफ़ुल लाम कहा जाता है। अगर ऐन कलेमा मुशद्दद हो जैसे कि क़द्दमा में है तो उसे मुज़अफ़ुल ऐन कहा जाएगा, और अगर लाम कलेमा मुकर्रर हो, डबल हो जैसे कि जलबबा में है, तो उसे मुज़अफ़ुल लाम कहा जाता है।